So today we are going to discuss cardiac output. ठीक है, इससे पहले हमने कार्डियक आउटपुट कहाँ डिस्कस किया था कि one of the factors, one of multiples to determine the arterial pressure is cardiac output. यानी कि arterial pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. ठीक है, तो one of the multiples of arterial pressure is cardiac output. अब cardiac output हम पहले भी कई जगह कर चुके हैं डिस्कस. व्हाट इज कार्डियक आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जामिनर्स बहुत वाइवा में पूछते हैं और बच्चे नहीं जवाब दे पाते हैं. कार्डियक आउटपुट क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. कार्डियक आउटपुट जो है बच्चों प्लीज ये याद रखो कि क्वांटिटी ऑफ ब्लड pumped into the aorta each minute by the heart. 1 minute में amount of the blood which is injected by the heart into the circulation is called cardiac output. और stroke volume क्या होता है? Stroke volume ये है amount of blood injected by the heart. यहाँ तक तो डेफिनेशन दोनों की एक ही है, कार्डियक आउटपुट की भी और स्ट्रोक वॉल्यूम की, अमाउंट ऑफ द ब्लड इंजेक्टेड बाय द हार्ट. लेकिन when you talk about stroke volume, the amount of the blood injected by heart in one beat, in one systole, in one contraction. ठीक है, एक बीट में कितना इंजेक्ट करता है, that is 70 ml. जबकि कार्डियक आउटपुट जो है, it is the amount of the blood injected by the heart in 1 minute. ठीक है, अगर आपका हार्ट 70 टाइम्स बीट करता है और 70 ml इंजेक्ट कर रहा है, तो that will be your cardiac output. ठीक है. What else we know about cardiac output is it is the amount of the blood that is flowing into your circulation. ठीक है. And एक और बात regarding cardiac output, that it is the sum of the blood which is flowing to all the tissues of the body. ठीक है. It is sum of the blood which is flowing to all the tissues of the body. ठीक है. And it is the blood which is flowing into the circulation, right? So this is your cardiac output, and this is the amount of blood ejected by the heart into the circulation. ठीक है. It is also the blood volume. ठीक है. This is the amount of the blood which is ejected by the heart into the circulation. ठीक है. And this is your cardiac output. कार्डियक आउटपुट के दो मल्टीपल्स हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. कार्डियक आउटपुट डिटरमिन करते हैं मिलीलीटर्स पर मिनट. ऑलवेज रिमेंबर टू मेंशन द यूनिट्स. अगर आप यूनिट्स नहीं मेंशन करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो 0 you will get a 0. Remember to mention the minutes. Stroke volume जो है मिलीलीटर्स पर बीट एंड हार्ट रेट जो है बीट्स पर मिनट, राइट. तो कार्डियक आउटपुट ml पर मिनट है, स्ट्रोक वॉल्यूम ml पर बीट है. ठीक है. So if a heart beats 70 times per minute, heart rate 70 times है और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है और पर बीट एंड हार्ट रेट जो है 72 ml पर बीट है. तो इट कम्स टू 5 liters, an estimate, rough estimate of 5 liters per minute, 4.9 to 5 liters per minute. And this is equivalent to the total blood volume. ठीक है, it is equivalent to the total blood volume. अच्छा, अब now what is venous return? ठीक है, it is a quantity of the blood flowing from the veins into the right atrium each minute. ठीक है, it is the amount of the venous return क्या है? It is the amount of the blood flowing from the tissues into the right atrium in 1 minute. ठीक है. Cardiac output should always be equal to venous return. ठीक है. Usually cardiac output और venous return हमेशा they are equal in except in few instances like inspiration and expiration. ये मैं आपको बताऊंगी after discussing cardiac output and stroke venous return के वैसे तो they are always equal but in some situations they are not equal. Okay? And what are those situations? Inspiration and expiration. Okay? Factors affecting cardiac output, level of body metabolism. ठीक है, बॉडी में जितनी ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रही है उतना ही ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा. कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म, राइट. सो अब आपको पता है कि
जितनी ज़्यादा टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होगा तो ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म की वजह से ब्लड वेसल डायलेट करेंगे, ब्लड फ्लो टू द tissues will increase. And as we know, the sum of the blood flow to the tissues is equal to cardiac output, ठीक है। So जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज होगा उतना ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा और उतना ज़्यादा आपका कार्डियक आउटपुट होगा, ठीक है। तो अगर बॉडी में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही है तो blood flow to the tissue has increased and cardiac output is the sum of the blood flowing to the tissues, ठीक है। So the other factor is age, size of the body, ठीक है। यंग हेल्दी रेस्टिंग मैन का कार्डियक आउटपुट है 5.6 लीटर्स पर मिनट, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट्स, एंड वुमेन का है जस्ट 4.9 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। एज और साइज ऑफ द बॉडी भी देखो, अगर आप एज ओल्ड एज में हो तो आपकी बॉडी एक्टिविटी जो है फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, मसल मास कम हो जाता है, ठीक है। साइज ऑफ द बॉडी भी डिक्रीजेस, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कार्डियक आउटपुट जो है ओल्ड एज में डिक्लाइन कर जाता है। जबकि यंग और हेल्दी एक्टिव लोगों का जो कार्डियक आउटपुट है इट इज मोर एज नॉन एक्टिव। फिर कार्डियक आउटपुट के अलावा एक और टर्म यूज बहुत ज्यादा होती है कॉल्ड कार्डियक इंडेक्स, ठीक है। कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया, इट इज द कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया इज कॉल्ड कार्डियक इंडेक्स, ठीक है। नॉर्मल पर्सन having a body surface area of 70 kg, a normal 70 kg man has a body surface area of 1.7 square meters, ठीक है। तो उसका कार्डियक इंडेक्स होता है 3 लीटर्स पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 3 लीटर्स पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। एक नॉर्मल बंदा जिसका 70 kg वेट है और उसका बॉडी सरफेस एरिया 1.7 है तो उसका कार्डियक इंडेक्स है 3 लीटर्स पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, फिर वो आपको एक ग्राफ दिखा रहा है जिसमें ये आपको एज है, ठीक है, और ये कार्डियक इंडेक्स है, ठीक है। अब आप देखें कि जब still the age of the 10 years, till the age of 10 years पे जाके कार्डियक इंडेक्स मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, 4 लीटर से भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन उसके बाद आफ्टर 10 years जो आपका कार्डियक इंडेक्स है इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड बाय द एज ऑफ 80 इट रिड्यूसेस, ठीक है। 3 से भी नॉर्मल अगर बंदे का 3 है तो आप देखो ये 2.4 तक आ जाता है। बिकॉज क्या हो रहा होता है कि ओल्ड एज में द person's physical activities decrease, his muscle mass has decreased, tissue metabolism has decreased, तो cardiac index भी decrease हो जाता है, राइट। ठीक है। अच्छा, अब जी कार्डियक आउटपुट का कंट्रोल क्या है, ठीक है। हार्ट, अब आपको कार्डियक आउटपुट से तो यही बात समझ में आ रही है ना कि जी हार्ट है विच इज पंपिंग द ब्लड, हाँ। तो जितना ज्यादा हार्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा वो हार्ट ब्लड पंप करेगा। लेकिन यस, हार्ट की स्ट्रेंथ इज इम्पोर्टेंट बट द हार्ट itself is not the primary controller of the cardiac output. Cardiac output is controlled by the venous return, ठीक है। The amount of blood entering the heart will be pumped out by the heart. Venous return in turn is controlled by factors which are affecting peripheral circulation. Okay? Venous return in turn is controlled by factors which are affecting the peripheral circulation. Okay? These factors are the primary controllers of cardiac output. यानी कि पेरिफेरल सर्कुलेशन को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो अफेक्ट करते हैं venous return को. Venous return in turn affect the cardiac output. And heart itself is not a primary controller of cardiac output. ठीक है. अच्छा, अब कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ द ब्लड इंजेक्टेड बाय द हार्ट इन वन बीट, ठीक है. तो according to Frank-Starling mechanism of heart, क्या था Frank-Starling law? The heart has a built-in mechanism that normally allows it to pump automatically whatever amount of blood that flows into it through the right atrium from the veins. Means whatever
whatever blood is coming from the veins into the right atrium, the heart will eject that blood. ठीक है? When increased quantities of blood flow into the heart, जब ज़्यादा blood enter होता है heart में, so there will be more, the blood muscle walls of the heart, they will get stretched, and as a result of that stretch, the cardiac muscle contracts with increased force, resulting in pumping the blood out of the heart, which has accumulated from the blood of venous return, right? This empties the extra blood that has entered from the systemic circulation. बात समझ में आ गई? Frank Starling के what that will be the cardiac output. ठीक है? Whatever amount is coming from the veins into the right atrium and into the heart, that will be ejected by the heart. ज़्यादा blood आएगा ज़्यादा eject हो जाएगा, कम blood आएगा कम eject होगा. ठीक है? अच्छा, एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम की हमने बात करी. फ्रैंक अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग, जितना ब्लड आ रहा है उतना हार्ट स्ट्रेच होगा और उतना ही ज्यादा इजेक्टेड इनटू द सर्कुलेशन. दूसरी बात है जी हार्ट रेट की. हार्ट रेट में क्या होता है, कैसे इंक्रीज हो रही है? क्योंकि कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए यू नीड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इंक्रीज हार्ट रेट. तो हार्ट रेट में क्या हो रहा है कि व्हेन ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम तो क्या होगा, the right atrium, the heart will stretch. ठीक है? The SA node जो है that will stretch. ठीक है? When the blood enters the right atrium, so the blood will stretch the SA node and the heart rate will increase. Number 2, दूसरी क्या वजह होती है? 25% तो heart rate increase हो रहा है due to the stretch of the blood, stretch of the SA node. ठीक है? Number 2 क्या होता है? Whenever the blood enters the right atrium, तो vein bridge reflex होता है. What will happen when the blood enters the right atrium? The heart will send signals to the vasomotor centers, and from the vasomotor centers, signals will come via sympathetics. Sympathetics are activated and parasympathetics are inhibited, leading to increase in heart rate. Heart rate दो वजह से increase हो रहा है. एक तो direct stretch of the ब्लड डायरेक्टली जो ब्लड है वो स्ट्रेच कर रहा है ऐसे नोड को, और दूसरे क्या हो रहा है कि आपका जो एसए नोड है जब वो स्ट्रेच होता है तो वो सेंड करता है सिग्नल्स. रिफ्लेक्स है ये. सिग्नल्स विल गो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द vasomotor center and the efferents will come back via sympathetics which are stimulated and parasympathetics inhibited, leading to rise in heart rate to 70%. ठीक है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ड्यू टू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ और हार्ट रेट इंक्रीज हुआ ड्यू टू फ्रैंक स्टार्लिंग एज वेल एज वेन ब्रिज रिफ्लेक्स. अच्छा जी, अब वो ये कहता है कि अंडर मोस्ट नॉर्मल अनस्ट्रेस कंडीशंस the cardiac output is controlled mainly by the peripheral factors that determine the venous return, right? Under normal conditions, cardiac output जो है it is controlled by the peripheral factors which is affecting the peripheral circulation and which in turn affect the venous return. लेकिन if the returning blood becomes the limiting factor that determines the cardiac output. ठीक है? अंडर नॉर्मल कंडीशन तो कार्डिक आउटपुट जो है वो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द पेरिफेरल फैक्टर्स. जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन को या जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वीनस रिटर्न को, राइट? लेकिन इफ द रिटर्निंग ब्लड बिकम्स मोर, ठीक है, अब स्ट्रेस कंडीशन आ गई है, ठीक है, देन what will happen, the heart will become the limiting factor that will actually determine the cardiac output. So as we know, venous return to the heart is the sum of all the local blood flow through all. Therefore, it follows that the cardiac output regulation is the sum of all the local blood flow regulation. So ये आपका venous return जो है वो sum of all the blood flow which is occurring in the tissues of the body, ठीक है? So cardiac output भी जो है वो sum of the blood flowing to the different tissues of the body, ठीक है?
ये आपको उसने एक डायग्राम दिखाया है, ठीक है। ये आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, और ये आपके टिश्यूज है, ठीक है। ये कार्डियक आउटपुट है और ये वेनस है। लेफ्ट हार्ट से ये आपकी एओर्टा है, ठीक है। एओर्टा से 40% ब्रेन में गया, 4% हार्ट में गया है, स्प्लैंकिंग में गया 27%, 22% sent in the kidneys and 15% went in the inactive muscles, and skin and other tissues में it is 18%, ठीक है। And so this is the total tissue blood flow, and the same amount is leaving these tissues, and that makes the venous return, ठीक है, which is entering the right side of the heart, right। इसके बाद बताया है टिश्यू मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट। टिश्यूज में जितनी ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा आपके टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म होगी, उतना ही ज्यादा आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज में क्या हो रहा है कि अगर आपके मसल्स हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं तो मोर ब्लड इज फ्लोइंग टू द मसल्स एंड कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज। ये ग्राफ में दिखाया कार्डियक आउटपुट का, कार्डियक इंडेक्स का, और ये है आपका कार्डियक इंडेक्स एंड कार्डियक आउटपुट, और ये आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन है, ठीक है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है उतनी ज्यादा ब्लड वेसल्स जो आपकी डायलेट हो रही हैं, और उतनी ज्यादा ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, राइट। सो ये बेसिक बातें बेटा ये आप सब पहले भी पढ़ते रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक बात वो और कहता है कि कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्रोनिक कार्डियक आउटपुट, ये बात हो रही है क्रोनिक कार्डियक आउटपुट की, ठीक है। इसमें और इसमें सिचुएशन में सिनेरियो है कि कार्डियक आउटपुट जो है ना क्रोनिक है, इसमें आर्टेरियल प्रेशर लेट सपोज इट रिमेन्स कांस्टेंट, arterial pressure remains if it remains constant, then cardiac output की inverse relationship है to the peripheral resistance, cardiac output की inverse relationship है to peripheral resistance। Let's suppose कि arterial pressure remains constant, हाँ। अब ये देखो कुछ कंडीशन है जिनमें कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और कुछ कंडीशन है जिसमें कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। This is your cardiac output and this is your total peripheral resistance. इस डायरेक्शन में पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और इस डायरेक्शन में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। हेरेडिटरी एमिशंस, हाइपरथायरॉयडिज्म, एनीमिया, पल्मोनरी डिजीजेस, प्लेजेट डिजीज, ठीक है, इन सब कंडीशंस में कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन आप देखो कि जैसे जैसे ये इंक्रीज कर रहा है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस की आप इनकी रिलेशनशिप, ठीक है, वो कम है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ तक कम है, अप टू 100 तक आता है, राइट। कार्डियक आउटपुट यहाँ पे ज्यादा है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस उतना ही कम है। एबी शंट में आप देखो कार्डियक आउटपुट कितना है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस 60 है, ठीक है। वेरी वेरी में 100 से भी ज्यादा है, 200 से भी ज्यादा है तो कार्डियक आउटपुट जो है वो 40 है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आओ, आप देखो कार्डियक आउटपुट हो गया कम, ठीक है। कार्डियक आउटपुट 100 से नीचे हो गया, 50 तक आ गया है, हाँ। हाइपोथायराइडिज्म में कार्डियक आउटपुट 50 हो जाता है, लेकिन ये देखो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो एक ये चीज इसमें आपने डिस्क्राइब की, रिलेशनशिप ऑफ कार्डियक आउटपुट विद पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं कि there are definite limits to the amount of blood that is collected by the heart. नॉर्मल कार्डियक आउटपुट आपका 5 लीटर्स पर मिनट है। उसका मैं आपको ये हार्ट दिखाती हूँ ग्राफ, ठीक है। ये आपका रिलेशनशिप जो कार्डियक आउटपुट की है हमेशा विद द राइट एट्रियल प्रेशर होगी, ठीक है। सो नॉर्मली क्या है, ये नॉर्मल, ये आपका ये नॉर्मल हार्ट रेट, ठीक है। वैसे तो अगर हम दिखाएंगे आपको तो अगले से 5 लीटर्स, ठीक है। इट इज एक्चुअली 5 लीटर्स, राइट। there is an increase in the heart rate, ठीक है, when the venous return is increasing, लेकिन एक स्टेज आती है फिर गेट अप प्लेटो, there is no further increase in the heart rate, ठीक है।
हार्ट रेट कम नहीं होगा, लेकिन देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द हार्ट रेट, राइट, वट एवर अमाउंट ऑफ ब्लड इज एंटरिंग। अंडर नॉर्मल कंडीशन आपका जो हार्ट रेट है वो कार्डिक आउटपुट 5 लीटर्स है, लेकिन क्या होता है कि आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर सकता है तो 13 लीटर्स पर मिनट, 2.5 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन। Normal cardiac output 5 liters है, tattoo level of this normal cardiac output is about 30 liters per minute, ठीक है, 2.5 times the 5 liters. This means that the normal human heart can pump a venous return up to about 2.5 times the normal venous return before the heart becomes a limiting factor in the control of cardiac output, ठीक है। अब हम to see the limiting effect of the heart, we will see the hypereffective heart and hypereffective heart, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका हार्ट है, ये मैक्सिमली आपका 13 लीटर्स पर मिनट इजेक्ट कर सकता है, ठीक है। नॉर्मल 5 है, लेकिन 2.5 टाइम्स और भी इजेक्ट कर सकता है अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब ये है आपका हाइपर इफेक्टिव हार्ट और ये है आपका हाइपो इफेक्टिव हार्ट, ठीक है। अब हाइपर इफेक्टिव हार्ट में क्या कहते हैं, what are the factors which are causing hyper effective heart? Sympathetic stimulation and hypertrophic heart. Sympathetic stimulation and hypertrophic heart, right? अच्छा से अब यार बताओ मुझे, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होता था हार्ट पे इफेक्ट? 3 इफेक्ट्स मैंने आपको बताए थे। एक तो हार्ट रेट इंक्रीज होती है, टोनोट्रोपिक इफेक्ट है। एक कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज होती है, डोमोट्रोपिक इफेक्ट है। और एक आयोनोट्रोपिक इफेक्ट था, यानी कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यानी कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से हार्ट रेट इंक्रीजेस टू 180 to 200 per minute, right? And length of contraction भी twice the normal हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। हार्ट रेट 70 से 180 हो गई, लेंथ ऑफ द कंट्रैक्शन भी twice the normal हो जाती है, ठीक है। As a result of sympathetic stimulation, जो कार्डियक आउटपुट है इंक्रीजेस twice the normal, ठीक है, दैट इज 25 लीटर्स पर मिनट, यानी कि नॉर्मली 5 लीटर्स हो रहा है, लेकिन इट कैन गो अप टू 13 लीटर्स। और अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाएगी तो कार्डिक आउटपुट डबल हो जाएगा। 13 का डबल क्या है, 26 लीटर्स, तो हम आसानी के लिए याद रखते हैं 25 लीटर्स, राइट। तो नॉर्मली हार्ट बीट 5 लीटर्स है, बट इट कैन गो अप टू 13 लीटर्स पर मिनट। और अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो हार्ट कार्डिक आउटपुट कैन बिकम 25 लीटर्स पर मिनट। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि कितनी वैल्यू होती है, कितनी हार्ट कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो सकता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से, ठीक है। तो एक इफेक्ट हमने देखा हाइपर इफेक्टिव हार्ट पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का क्या इफेक्ट है, और हाइपरट्रोफिड हार्ट, ये दोनों सिचुएशन जो है बनाएंगे एक हाइपर इफेक्टिव हार्ट। हाइपरट्रोफिड हार्ट कब होता है, हार्ट की हाइपरट्रोफी जो है, यस, हाइपरट्रोफिड, हैविंग अ हाइपरट्रोफिड हार्ट इज अ डिजीज कंडीशन, ठीक है। लेकिन आपके जो एथलीट्स होते हैं ना, तो जब ये वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा वेट नहीं कि हार्ट डैमेज हो जाए, ठीक है। वेट लिफ्टिंग है व्हेन दे एक्सरसाइज, ठीक है, when they exercise the workload on the heart increases। अगर workload on the heart जो है, it's not damaging the heart, so what will happen, the heart will get hypertrophied। So the heart, when your body is exercising, the heart muscles, the thickness है, it increases, it hypertrophies, ठीक है। So what will happen, the heart mass will increase 50 to 70% and the strength of the contraction also increases। तो ये जो एथलीट्स होते हैं, मैराथन रनर्स होते हैं, वेट लिफ्टर्स होते हैं, इन सब के हार्ट जो है ना, ड्यू टू एक्सेसिव वर्क ये हाइपरट्रोफी हो जाते हैं।
एंड दिस हाइपरट्रोफी इज नॉर्मल। ठीक है, दो तरह की हाइपरट्रोफी है, एक नॉर्मल है और एक एबनॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली इसके हार्ट है, दे आर हाइपरट्रोफी। जब ये हाइपरट्रोफी हो जाते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन भी जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब जनाब एक एथलीट है, ठीक है, जो अंडर रेस्टिंग कंडीशन उसका 5 लीटर्स पर मिनट है कार्डिक आउटपुट, और वो इंक्रीज हो सकता है टू 30 लीटर्स पर मिनट। अब जब वो एक्सरसाइज शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, तो उसकी हाइपरट्रोफी हार्ट है और साथ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी होती है। ठीक है, तो दोनों को मिला के हाँ कार्डिक आउटपुट जो होता है वो हो जाता है 30 टू 40 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, एक नॉर्मल बंदा है, उसकी 5 लीटर्स पर मिनट हाँ कार्डिक आउटपुट है, इट कैन गो अप टू 13 लीटर्स पर। और उस नॉर्मल बंदे की अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाए तो उसका कार्डिक आउटपुट 25 लीटर्स पर मिनट तक जा सकता है। और वही बंदा अगर एथलीट है और उसका हाइपरट्रोफिड हार्ट है तो उसका कार्डिक आउटपुट 40 लीटर्स तक हो सकता है। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं फैक्टर। दिस इंक्रीज लेवल ऑफ पंपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिटरमिनिंग द रनर्स रनिंग टाइम। ठीक है, हार्ट हाइपरट्रोफी कैन इंक्रीज पंपिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, हाइपरट्रोफिड हार्ट की पंपिंग इज हैज अ स्ट्रॉन्ग पंपिंग एबिलिटी। ठीक है, अच्छा तो ये तो हमने हाइपरट्रोफिक हार्ट की बात कर ली। साथ हम चलते चलते जरा हम नर्वस स्टिमुलेशन का इफेक्ट देख लेते हैं कार्डियक आउटपुट के ऊपर। ठीक है, नर्वस स्टिमुलेशन का क्या इफेक्ट है? लेट्स से एक बंदा है, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा है। अब जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी ब्लड वेसल जो है वो डायलेट करेंगे, ठीक है, ताकि फ्लो ऑफ द ब्लड शुड इंक्रीज टू द स्केलेटल मसल्स। एज अ रिजल्ट ऑफ वेजो डायलेशन पेरिफेरल रेजिस्टेंस फॉल कर जाएगा। ठीक है, कार्डिक आउटपुट तो इंक्रीज होएगा लेकिन पेरिफेरल रेजिस्टेंस फॉल करेगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस फॉल करेगा तो उसका आर्टेरियल प्रेशर भी फॉल करेगा। तो अगर आर्टेरियल प्रेशर फॉल कर गया तो ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज विल डिक्रीज। लेकिन ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे इसलिए नहीं होता है बिकॉज क्या होता है कि जैसे बंदा एक्सरसाइज शुरू करता है तो व्हाट हैपेंस, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है। ठीक है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है एंड दैट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है दैट इंक्रीजेस द हार्ट रेट। ठीक है, so during exercise there is marked vasodilation of the blood vessel due to increased metabolic activity, but the arterial pressure does not fall due to nervous reflexes due to sympathetic stimulation. इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी से वेजोडाइलेशन हो जाती है लेकिन आर्टरी प्रेशर फॉल नहीं करता बिकॉज ऑफ द नर्वस रिफ्लेक्सेस व्हिच आर सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस। Maintenance of a normal arterial pressure by the nervous reflexes is essential to achieve high cardiac output when the peripheral vessels dilate to increase the venous return. ठीक है, so this is very important कि arterial pressure नहीं fall करता because of the sympathetic stimulation. The nervous reflexes provide additional signals to raise the arterial pressure above normal, which increases the cardiac output an extra 30 to 100%. अच्छा, अब इससे पता है क्या होता है? जब मैं आपको एक्सरसाइज पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि अब जब ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होएगी ना तो उससे ये नहीं होगा कि जी सारे टिश्यूज जो है कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। नो, जो जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रही है स्केलेटल मसल में वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती क्योंकि एक्चुअली द लोकल ब्लड फ्लो का जो कंट्रोल है ना मसल्स में वो तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मेटाबोलाइट्स नॉट बाय सिंपैथेटिक्स। सिंपैथेटिक्स जो है द रेस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द बॉडी खास तौर पर स्किन एंड स्टैंकिंग एरियाज के वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देंगे। ठीक है, एंड स्किन एंड स्टैंकिंग एरिया की जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो आर्टेरियल प्रेशर जो है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस राइज हो जाएगा और आर्टेरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा और स्केलेटल मसल के अलावा जो एरियाज हैं वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी।
तो उसके जो आपका ब्रेन में नहीं होगी वेजो कंस्ट्रिक्शन, आपके हार्ट में नहीं होगी वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, लेकिन स्किन एंड स्टैम्पिंग एरिया की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। मसल्स के जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेटेड ही रहेंगे बिकॉज ऑफ ऑटो रेगुलेशन। तो ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आपका आर्टरी प्रेशर नहीं फॉल करेगा। अब ये उसने एक एग्जांपल दी है कि सिंपैथेटिक्स का क्या इफेक्ट है ऑन द कार्डियक आउटपुट। उसने एक ड्रग इंजेक्ट की, डायनाइट्रोफिनॉल, ये जो है ना वेजोडाइलेटर है, ठीक है, डायनाइट्रोफिनॉल जो है वो वेजोडाइलेटर है। तो अब दो सिनेरियोज उसने दिए। ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये विदाउट नर्वस कंट्रोल है और ये विद नर्वस कंट्रोल है, ठीक है। तो आप ये देखो कि इफेक्ट ऑन द आर्टीरियल प्रेशर क्या है और इफेक्ट ऑन द कार्डिक आउटपुट क्या है। ये देखो यहाँ पे आपका नर्वस कंट्रोल है तो आपका आर्टीरियल प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, राइट। और लेकिन आपका विदाउट नर्वस कंट्रोल आपका आर्टीरियल प्रेशर जो है वो फॉल कर गया है। और यहाँ पे देखो कि डायनाइट्रोफिनॉल दी हुई है, तो आप देखो कि कार्डिक आउटपुट कितना ज्यादा इंक्रीज कर गया है, लेकिन आपका जो विदाउट नर्वस कंट्रोल आपका कार्डिक आउटपुट जो है दैट इज हाउ इट इज इफेक्टिव, ठीक है। यानी कि अगर आप वेजोडाइलेटर्स दोगे और उस बंदे के अंदर नर्वस कंट्रोल सिंपैथेटिक्स काम नहीं करेंगे तो आर्टेरियल प्रेशर जो है वो फॉल कर जाएगा, आर्टेरियल प्रेशर जो है वो फॉल कर जाएगा और कार्डिक आउटपुट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर उसके नर्वस कंट्रोल काम कर रहा है तो क्या होगा कि आर्टेरियल प्रेशर नॉर्मल रहेगा, कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं अन करीब, इसकी तैयारी पकड़ लो और पढ़ना शुरू हो जाओ, सीरियस हो जाओ आप लोग, राइट। एग्जाम्स आपके टाइम पर ही होंगे, इससे बिल्कुल रिलैक्स ना बैठो और पढ़ाई शुरू कर दो। अच्छा, तो हाइपर इफेक्टिव हार्ट कब होता है और हाइपो इफेक्टिव हार्ट कब होता है। तो हमने जैसे डिस्कस किया कि हाइपर इफेक्टिव हार्ट में क्या होता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है या हार्ट का मसल थिकन हो जाता है एथलीट्स में। हाइपरट्रोफिड हार्ट में द कार्डिक आउटपुट कैन इंक्रीज टू 40 लीटर्स पर मिनट, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी हो रही है और हार्ट भी हाइपरट्रोफिड है तो cardiac output can increase to 40 liters per minute. Of factors that are causing hypoeffective heart. हाइपर इफेक्टिव हार्ट जो है उसके फैक्टर्स कौन कर रहे हैं, एक तो थिकनेस ऑफ द हार्ट मसल और नंबर 2 सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग हाइपो इफेक्टिव हार्ट, ठीक है। हाइपो इफेक्टिव हार्ट का क्या मतलब है, हार्ट कम काम कर रहा है। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज causing a heart attack, inhibition of nervous excitation of the heart, pathological factors that can cause abnormal heart rhythm or rate of the heartbeat, यानी heart rate कम हो गया है, valvular heart diseases हैं, increased arterial pressure against which the heart must pump such as hypertension, congenital heart diseases, myocarditis and cardiac hypoxia। ये सारी जो conditions हैं जिसमें heart anomalies हैं, आपकी heart diseases हैं, they are causing hypoeffective heart, ठीक है। अच्छा, अब हम फिर डिस्कस करेंगे पैथोलॉजिकली लो एंड हाई कार्डियक आउटपुट, ठीक है। पैथोलॉजिकली लो एंड हाई कार्डियक, अभी हमने जो बात की थी ना हाइपर इफेक्टिव हार्ट की, जिसमें हार्ट ज्यादा कार्डियक आउटपुट दे रहा है इन एथलीट्स, वो था फिजियोलॉजिकल हाई कार्डियक आउटपुट। एथलीट्स में जिनमें हार्ट हाइपरट्रोफिड हो जाता है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी होती है, दैट वाज अ नॉर्मल हाई कार्डियक आउटपुट।
ये एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें हार्ट कार्डिक आउटपुट 40 लीटर्स तक हो जाता है। अब और लेकिन जो हमने हाइपोइफेक्टिव हार्ट की बात की थी ना, वो तो एबनॉर्मल कंडीशन में ही होता है हाइपोइफेक्टिव हार्ट, ठीक है। जो हाइपर हाई कार्डिक आउटपुट नॉर्मल लोगों में भी होता है। अब हम बात करें पैथोलॉजिकली लो एंड हाई कार्डिक आउटपुट, ठीक है। ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। आप ये देखो कि कार्डिक आउटपुट जो है कैसे इंक्रीज हो रहा है इन डिफरेंट कंडीशन एंड कैसे डिक्रीज होता है इन कंडीशन, ठीक है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हाई कार्डिक आउटपुट ड्यू टू क्रॉनिकली रिड्यूस्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि क्रॉनिकली अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है तो कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है। अगेन मैं आपको दिखाती हूँ, प्रोवाइडेड कि आर्टीरियल प्रेशर जो है रिमेन्स कांस्टेंट, कार्डिक आउटपुट की इनवर्स रिलेशनशिप है विद टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अच्छा जी, नंबर वन एग्जांपल है वेरी 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 वेरी, वो कंडीशन जिसमें कार्डिक आउटपुट जो है वो ज्यादा होता है लेकिन पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होता है। अब उसमें क्या है, इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ विटामिन थायमिन, विटामिन B1 इन द डाइट, हाँ। तो जब विटामिन B1 नहीं होगी तो एटीपी की फॉस्फोरिलेशन नहीं होगी, सो देयर इज नो एटीपी एंड सो देयर इज नो वेसोकंस्ट्रिक्शन। जब ब्लड एटीपी नहीं होगी तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, एनर्जी नहीं है तो कंस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे। तो क्या होगा कि मार्क कॉम्पनसेटरी पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, ब्लड वेसल सारी डायलेट कर जाएंगे। अब जब ब्लड वेसल सारी डायलेट कर जाएंगे तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगा, फॉल कर जाएगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस फॉल कर जाएगा तो क्या होगा कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो वेनस रिटर्न भी ज्यादा होगा और कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि वेरी वेरी वो कंडीशन है जिससे कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑल द ब्लड वेसल्स आर स्मॉल, ब्लड वेसल्स वो सारी डायलेट कर जाती है, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट कर जाती है क्योंकि उनकी एनर्जी नहीं मिलती वेसोकंस्ट्रिक्शन के लिए। When the blood vessels dilate, flow of the blood to the tissues will increase, ठीक है। फ्लो ऑफ द ब्लड टू द टिश्यूज विल इंक्रीज, तो क्या होगा कि वेनस रिटर्न विल इंक्रीज एंड thus कार्डिक आउटपुट विल इंक्रीज। लेकिन वेसोडाइलेशन, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो फॉल कर जाता है, राइट। लेकिन होता क्या है, आर्टेरियल प्रेशर नहीं फॉल करता बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक्स व्हिच आर वर्किंग। दूसरी कंडीशन है एट्रियोवेनस फिस्टुला। एट्रियोवेनस फिस्टुला में क्या हो रहा है कि फिस्टुला क्या होता है, जब डायलिसिस का पेशेंट होता है ना तो उसमें आप एट्रिया और वेन को डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यू आर बाईपासिंग द रेजिस्टेंट वेसल्स, ठीक है। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ब्लड जो है दे स्टार्ट फ्लोइंग डायरेक्टली फ्रॉम द आर्टरी इनटू द वेन्स। तो क्या हो रहा है कि बीच में से जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टरी इनटू द वेन, तो कार्डिक आउटपुट और वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है एट्रियोवेनस फिस्टुला में और पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है क्योंकि ब्लड जो है वो डायरेक्टली फ्लो कर रहा है इनटू द फ्रॉम द आर्टरी इनटू द वेन। रेजिस्टेंस वेसल्स को बाईपास करती है, रेजिस्टेंस वेसल्स को बाईपास कर देते हैं एवी फिस्टुला में। एवी फिस्टुला कब बनाते हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स में वी मेक एवी फिस्टुला। इस तरह कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस फॉल हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म में टिश्यू के थायराइड हार्मोन जो ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द टिश्यूज। तो जब टिश्यू से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगी तो ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज विल इंक्रीज। सो कार्डिक आउटपुट क्या है, सम ऑफ द ब्लड फ्लोइंग इनटू द टिश्यूज। तो जितना ज्यादा ब्लड फ्लो टिश्यूज में कर होगा उतना ही ज्यादा आपका कार्डिक आउटपुट होगा। और जब मेटाबॉलिज्म हो रही है टिश्यूज में तो ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट कर जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यूजेज जो इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है वहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करेगी, जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं दे विल
cause vasodilation of the blood vessels. तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस vasodilation of blood vessels में से फॉल कर जाएगा, लेकिन amount of blood flowing to the tissues will increase, which will increase the venous return, and which in turn will increase the cardiac output. Right? ठीक जनाब, अनीमिया, अनीमिया में क्या होता है? अनीमिया में भी यही होता है कि कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाता है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो फॉल कर जाता है। राइट? तो इन सिवियर एनीमिया में क्या होता है कि जो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो लो हो जाती है। तो जब ब्लड की विस्कोसिटी लो हो जाती है तो क्या होगा? फ्लो ऑफ द ब्लड जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ ब्लड डिक्रीजेस। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कार्डियक आउटपुट जो है वो more blood will enter the tissues and cardiac output will increase। एक वजह तो ये हो गई। इस सिवियर एनीमिया में टिश्यू में जो रेड ब्लड सेल्स, ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो इट फॉल्स। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, फ्लो ऑफ द ब्लड जो है becomes more। ठीक है, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ब्लड डिक्रीजेस एंड the blood will flow greater than normal into the tissues। ठीक है, तो more blood is flowing to the tissues, so more will be the venous return and more will be the cardiac output। नंबर 2 अनीमिया में क्या होता है कि अनीमिया में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी ब्लड में। ठीक है, तो क्या है कि लेस ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द टिश्यूज। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन में टिश्यूज में अगर ऑक्सीजन कम जाएगी तो ब्लड वेसल्स वहाँ की वेसोडाइलेट हो जाएंगे। ठीक है, blood vessels vasodilate होंगे तो blood flow to the tissues will increase, there will be increase in the cardiac output, लेकिन vasodilation की वजह से peripheral resistance जो है वो fall कर जाता है। तो अनीमिया में कार्डियक आउटपुट की बेसिकली 2 रीजंस है। एक तो विस्कोसिटी फॉल हो गई तो फ्लो ऑफ द ब्लड टू द टिश्यू इंक्रीज, रेजिस्टेंस कम हो गया। नंबर 2, अनीमिया में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑक्सीजन इज नॉट बीइंग सप्लाइड टू द ब्लड वेसल्स। So what will happen? The blood vessels will dilate. Blood vessels will dilate, तो आपका peripheral resistance जो है वो fall कर जाएगा, and as more and more blood, the blood vessels have vasodilated, so more and more blood will enter the tissues, and there will be more venous return, and the cardiac output will also increase। ये तो हो गया आपका अनीमिया। राइट? ये हमने बात कर ली पैथोलॉजिकली हाई कार्डियक आउटपुट की। ठीक है, पैथोलॉजिकली इन कंडीशंस में हाई कार्डियक आउटपुट होता है और लो पेरिफेरल, ये क्या है, बेरी बेरी है, एवी फिस्टुला है, हाइपरथायराइडिज्म है और एनीमिया। ठीक है, इन सब सिचुएशंस में कार्डियक आउटपुट जो है सबसे ज्यादा हाई कार्डियक आउटपुट होता है बेरी बेरी में। ठीक है, फिर आपके एविशंस में हाइपरथायराइडिज्म में भी हाई होता है एंड अनीमिया में भी हाई होता है, और इन सब सिनेरियोज में आपका जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो लो होता है एज कम्पेयर टू हाई कार्डियक आउटपुट। अब हम कंडीशन की बात करते हैं जहाँ पे कार्डियक आउटपुट जो है वो लो है। ठीक है, यस, एबनॉर्मल कंडीशंस में ही कार्डियक आउटपुट लो होता है। एबनॉर्मलिटीज क्या है? एक तो एबनॉर्मलिटीज हार्ट के अंदर है, एबनॉर्मलिटीज हार्ट के अंदर है, द पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट हैज रिड्यूस्ड। नंबर 2 क्या है कि कंडीशन दैट आर कॉजिंग लो venous return। ठीक है, द कंडीशन दैट आर कॉजिंग लो venous return। कार्डियक आउटपुट क्यों कम हो गया? एक तो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कम हो गई है, या वीन कंडीशन जिनकी वजह से venous return कम हो गया। ठीक है, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द decreased cardiac output by the decreased cardiac factors। ठीक है, सिवियर वही बातें, सिवियर coronary blood vessels blockage and leading to myocardial infarction, severe valvular heart disease, myocarditis, cardiac tamponade, cardiac metabolic derangement। तमाम diseases which are affecting the heart muscle, they will decrease the cardiac output। ठीक है, अब हम वो पेरिफेरल फैक्टर्स की बात करते हैं, नॉन कार्डियक फैक्टर्स की, जिनकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। ठीक है, वो पेरिफेरल फैक्टर्स जिनकी वजह से venous return कम हो रहा है, venous return कम हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो रहा है डिस्पाइट कि हार्ट इज नॉर्मल। ठीक है,
So these are all non-cardiac conditions. ठीक है, नॉन कार्डियक कंडीशंस में हार्ट सही है लेकिन पेरिफेरल फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं, दे आर अफेक्टिंग द वेनस रिटर्न एंड वेनस रिटर्न इज अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट। नंबर 1 जो है वो है आपका डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, बॉडी में ब्लड वॉल्यूम हो गया है कम, तो क्या होगा, वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। ठीक है, वेनस रिटर्न कम होगा तो क्या होगा कि ब्लड फ्लो बैक टुवर्ड्स द हार्ट विल डिक्रीज। Loss of blood decreases the filling of the vascular system to such a low level that there is not enough blood in the peripheral vessels to create peripheral vascular pressures high enough to push the blood back towards the heart. ठीक है, अब ब्लड लॉस हो गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या कोई इमरजेंसी है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया है और एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया पेशेंट का, तो ब्लड फ्लो इतना थोड़ा हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम इतना कम हो जाता है कि वो सफिशिएंट प्रेशर बिल्ड ही नहीं कर सकता कि ब्लड गोस बैक टू द टुवर्ड्स पुश बैक टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो अब इससे हार्ट ठीक है लेकिन अमाउंट ऑफ पेरिफेरल फैक्टर्स में ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। दिस इज कॉजिंग डिक्रीज इन वेनस रिटर्न। फिर दूसरी कंडीशन है अक्यूट वेनस डायलेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि सडनली ब्लड जो वेन्स है वो डायलेट कर जाती है। ठीक है, fainting results when the sympathetic nervous system suddenly becomes inactive। ठीक है, अब आपको पता है, याद है मैंने आपको बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा बहुत उसके टोनिक चार्ज करता रहता है, ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्टेड स्टेट में रखता है। ठीक है, नॉर्मली वेसोपोटेंट टोन रहती है ड्यू टू कंटिन्यूअस सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। ठीक है, तो एक क्या होता है कि सडनली ना आपके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इनएक्टिव हो जाता है, तो वो जो कंटिन्यूअस सिंपैथेटिक डिस्चार्ज था जिसमें ब्लड वेसल्स को टोनिकली कंट्रैक्टेड रखा था वो खत्म हो जाता है। और व्हाट विल हैपन, द पेरिफेरल वेसल्स, द कैपेसिटेंस वेसल्स स्पेशली द वेन्स, दे डायलेट मार्केटली। सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट होता है ऑन द वेन्स। तो क्या होगा, ब्लड अब वेन्स जो है वो डायलेट करती हैं, तो फिलिंग प्रेशर ऑफ द वास्कुलर सिस्टम बिकॉज द ब्लड वॉल्यूम कैन नो लॉन्गर क्रिएट adequate pressure in the now flaccid peripheral blood vessels. The blood pools in the vessels and does not return to the heart. Okay? अब क्या है कि अमाउंट ऑफ ब्लड तो ठीक उतना ही है, अमाउंट ऑफ ब्लड नॉर्मली उतना ही है 5 लीटर्स, लेकिन अब क्या ब्लड वेसल्स आपकी डायलेट कर रही हैं। ठीक है, तो वो जो ब्लड प्रेजेंट है इट इज नॉट एबल टू जनरेट इनफ प्रेशर टू पुश द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, and then the blood flows in the vessels. So acute venous dilation में यदि veins peripheral factors में अगर veins dilate हो जाएंगे तो return of the blood towards the heart will decrease. Number 3 क्या है, obstruction of the large veins. Large vessels हैं आपकी, वो आपकी let's say pregnancy है, उसने obstruct कर दिया आपकी large veins को, तो क्या होगा, तो blood towards the heart will decrease। ठीक है, the large veins leading into the heart become obstructed so that the blood in the peripheral vessels cannot flow back into the heart. Decrease tissue mass। ठीक है, टिश्यू mass कब डिक्रीज हो जाता है, prolonged periods of physical inactivity। ठीक है, तो बॉडी का टिश्यू mass जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ओल्ड पीपल यूजुअली बहुत थिन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज विल डिक्रीज। ठीक है, दिस डिक्रीज इन ब्लड फ्लो विल कॉज डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। और हाइपोथायरायडिज्म में भी यही होता है कि टिश्यू की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही तो ब्लड फ्लो इन द टिश्यू डिक्रीज। then decrease physical activity, decrease in total oxygen consumption and blood flow to the muscle, decrease in skeletal muscle blood flow and cardiac output, hypothyroidism। ठीक है, circulatory shock, fall in cardiac output, diminished supply of blood to the tissues like heart, brain, kidney, followed by loss of tissue function। Right, so I will stop here। मैंने आपको फटाफट बेसिकली पढ़ा दिया है, ये सब बेसिक सी बातें हैं आपको आनी चाहिए, और इसमें कोई इतनी देर लगाने की जरूरत तो मुझे नहीं समझ में आती कि मुझे लगाना चाहिए। A little break for you people।
अनम्यूट कर दें प्लीज जरा से। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है तो पूछ लें आप मुझसे। क्या? यस मैम, क्वेश्चन पूछ लो, कोई सवाल है तो। कोई सवाल नहीं है? ये कैसे हो सकता है? या तो आपने सवाल पढ़ा सुना ही नहीं मैंने आपको क्या बताया है। हाँ, या तो कुछ समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आ गया है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस पूछ लो। पेरिफेरल रेजिस्टेंस बता दूं? ठीक है, और कल वाले लेक्चर में बताऊंगी। और जूम का मतलब है कि मैं स्लाइड को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ओके, और ये भी फिसला बता दूंगी। ठीक है, और जल्दी से सवाल पूछ लो मेरे से, कल मैं बता दूंगी। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ओके, ठीक है, शाबाश, गुड। ये वो बच्चे हैं जो सुन रहे हैं मुझे। ठीक है, और एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, मैं आपको कल ये एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। हाइपर इफेक्टिव हार्ट, ठीक है, ओके, ठीक है। आई विल गिव आंसर्स टुमारो, मैं आपको सब दोबारा से बता दूंगी। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट कैन लीड टू हार्ट फेलियर? नो। अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ है तो हार्ट तो काम कर रहा है सही। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू।